کہ دنیا کا مارا ہوا ڈسا ہوا لوگوں کا بھی اور جادو کا بھی، جنات نظر بد کا بھی مجھ سے ملاقات کرنے آتا ہے، اور وہ مجھے تجربات کی ایک دنیا دے کے جاتا ہے۔ وہ اپنی بات نہیں بتا رہا ہوتا، وہ مجھے تجربات کی دنیا دے رہا ہوتا۔ کچھ چاہیے ہمیں، اور اتنا کچھ چاہیے، اتنا کچھ چاہیے کہ ہمارے ساتھ کچھ ہو۔ ہمارے ایک مالی ہوتے تھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے، وہ پودوں کو پیوند کرتے تھے۔ پیوند کرتے ہوئے پودوں کو وہ حلوہ ہی کھاتے تھے، روٹی کی جگہ حلوہ کھاتے تھے، اور بہت کھاتے تھے حلوہ۔ تو میں انہیں حلوہ دینے گیا تو وہ پودوں کو پیوند کر رہے، تو ایک بندہ آ کے کھڑا ہوا، مجھے تو پتہ نہ چلا کہ وہ بندہ کون ہے، لیکن انہیں پتہ چل گیا۔ تو اس نے کہا کہ آپ رات کو بھی یہاں ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا نا، رات کو ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، ہتھیارو جس کے پاس ہتھیار۔ اچھا اس نے کہا ٹھیک ہے، اور یہ گیا۔ مجھ سے انہوں نے جو لفظ کہا وہ لفظ بھی یاد ہے، کہنے لگا چور ہے، یہ پتہ کر رہا تھا کہ میں ان کے پودے چرا کے آگے جا کے بیچوں۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں، رات کو یہاں ہتھیارو بندہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چل گیا ہے، اب نہیں آئے گا۔ اور بلکہ انہوں نے جو لفظ کہا نا، وہ لفظ مجھے یاد ہے۔ کہنے لگا دیکھا نہیں تھا یہاں سے ایسی زیٹم ہوا ہے، زیٹم لفظ یاد۔ آپ کو بھی مجھے بھی ہتھیارو نظام چاہیے۔ میرے حضور سنے، میں ایک دلیل دیتا ہوں، میرے آقا سے بڑھ کے حفاظت کی دعائیں پڑھنے والا کوئی ہوگا؟ جن کے زبان سے، جن کے دل سے ساری دنیا کو حفاظت کا نظام، حفاظت کی دعائیں، حفاظت کے اعمال، برکت کا نظام، برکت کی دعائیں اور برکت والے اعمال ملے، ان سے بڑھ کے بھی کوئی حفاظت کا نظام ہوگا کسی ہستی کے پاس؟ بولیں نہیں ہوگا۔ لیکن خصوصی جب حضور پہ جادو کیا دشمنان نے، ہمیشہ مخالفت کرنے والے، حسد کرنے والے، انتقام لینے والے، کینہ پرور، ہمیشہ ہر وار کرتے ہیں۔ ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے، ان ہر واروں میں ایک وار جادو کا بھی ہوتا ہے۔ اور آج آپ کو ایک پتے کی بات بتاؤں، مجھے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ایک عمل دیا ہے کہ اگر کوئی دشمن حاسد ابکری اور تسبیح خانے کی مخالفت کرے، سب سے پہلے اس کے وظائف، اس کی تسبیحات، اس کے عمل کی تاثیر سلب، اس کی چیزیں سلب کر۔ آپ محسوس کریں، جتنے بھی دشمن ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا اسلحہ چھینا جاتا ہے، کہتے ہیں ہینڈز اپ، ان کو اسلحے سے، ان کے ویپن، ان کی طاقتوں سے پہلے محروم کیا جاتا ہے۔ سلب کر لیں، عمل ہے بڑا طاقتور، وہ آپ کی دنیا کے جس کونے میں ہے، پھر وہ سارے جادو کے عمال یا حفاظت کی دعائیں جو عمل کرے گا اثر نہیں کرے گا، اس سے وہ چیز سلب کر۔ طاقتور عمل ہے سلب، طاقتور عمل ہے سلب، ہر چیز چھین لو۔ میں بات کہاں چلی تھی میری، پہلے مجھے یہ بات، میں کہیں اور نکلا ہوں، یہی بات جادو کیا، میں جادو کی بات کر رہا تھا، یہاں رہیے گا۔ اچانک اس میں سے ایک بات نکلی، سلب کر لو۔ کشمیری بازار لاہور میں بیٹھا، حضرت کے ساتھ تھا، حضرت تشریف فرماتے، ایک صاحب کو دیکھا، وہ ان کے پاس ایسے ڈبے تھے، اس میں دھونی ڈالتے تھے، دکان کے آگے ہلاتے تھے، لوگ ان کو کچھ پیسے آنا دو آنا پیسے دیتے تھے، اس دور میں آنا دو آنا بڑی بات تھی۔ حضرت نے مجھے فرمایا طارق اس کو بلا لاؤ۔ میں نے ان کو عرض کیا میرے مرشد فرما رہے ہیں، انہوں نے دور سے آئے نہ دیکھا، کہہ رہے میں نہیں آتا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیے، میں نے کہا مرشد کا حکم ہے، جان جائے گی، جانثار ہوں، فقیر ہوں۔ میں کھینچ کے لے آیا، مرشد کہیں ہاتھ ملا، ہاتھ نہ ملا، سرکار نے فرمایا ہاتھ ملا۔ آخر کار مرشد نے ہاتھ ملا کے ایسے دیا کرے جا، اب روئے۔ اب مجھے پتا نہ ہوا کیا، لوگوں کو پتا نہ ہوا کیا، دو چار بندے وہاں بیٹھے تھے، معاف کر دیں، نہیں کروں گا، معاف کر دیں۔ فرمایا جا، روتا، آخر وہ چلا گیا۔ فرمایا یہ لوگوں کی دکانوں باندھ رہا تھا، جادو کر رہا تھا، جو اس کو آنا دو آنے پیسے دیتے تھے، جو نہیں دیتے تھے ان کی دکانیں باندھ رہا تھا۔ میں نے اس کا سب کچھ سلب کر لیے، اس کی ہر چیز اس سے چھین لی ہے۔ اب یہ پڑھے گا وہی عمل، کرے گا وہی عمل، پڑھے گا، اپنی بیویوں کو لگائے گا، اپنے بچوں کو لگائے گا، اپنے گھر والوں کو لگائے گا، اپنے دوستوں کو لگائے گا۔ پورے طاقتور عمل ہے سلب عمل، اس کا سب کچھ چھین لینا۔ اچھا وہ سمجھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اب وہ خالی ایک پورا طاقتور نظام ہے۔ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات عرض کر رہا تھا، آپ سے بڑا دعائیں پڑھنے والا، تسبیحاں کرنے والا، عمل کرنے والا، آخر آپ کے لیے خصوصی فلک اور ناس کیوں اتری؟ معوذہ تین، فلک اور ناس کیوں آئی، خصوصی آئی؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے اللہ جل شانہ نے قیامت تک کے آنے والے مجھ آپ کو طالب علموں کو بتایا، کچھ چیزوں کے لیے کچھ خصوصی چیزیں ہوتی، جیسے یا کہاروں کا میں بتا رہا ہوں، یا کہارو آپ کے پاس ایسا طاقتور اسلحہ ہے کہ جو حاسد اور دشمن پہ قہر برساتا ہے، حاسد اور دشمن پہ، اور ایسا قہر برساتا ہے کہ دشمن نظر بد پہ، جادو پہ، جنات پہ، حسد پہ، یا بندش لگاتے ہیں کوئی لوگ کہ زندگی پہ، رزق پہ بندش، دکان باندھ دی، جیسے وہ بندہ بندش لگا رہا تھا، جو اس کو پیسے دے رہا تھا، جو نہیں دے رہا تھا اسے بندش لگا رہا تھا، بندش لگانے والوں پہ یہ بندش لگا دیتا۔ میرے لفظ پہ پھر غور سے سنیں، طاقتور لفظ کہہ گیا ہوں، بندش لگانے والوں پہ، یا کہا جب ان پہ بندش لگتی ہے
ان کے बंदिश टूट जाती। आपकी जिंदगी में आसानियां, राहतें, खैरें, आफियतें, बरकतें शुरू हो जाती, फूल बहारें शुरू हो जाती, खुद बंदिश लगाने वाले पे बंदिश लग जाती। पानी में पाँव डिबो के, मुझे अभी तुर्की कॉन्फ्रेंस थी तो हर बंदे ने कुछ ना कुछ बात की। एक साहब मुझसे कहने लगे एक जूते आए हैं हजरत। मैंने कहा वो कैसे? कहने लगे उन जूतों के नीचे तहे हैं, उनके नीचे पानी भर दिया जाता है, उनके छोटे छोटे मसाम हैं, जब बंदा चलता है सिर्फ इतना पानी होता है कि पाँव गीला रहे और बंदा उसी पानी पे चलता है। और वो लोग जिनको जहनी डिप्रेशन, टेंशन, कोई इस किस्म के मसाइल, दिमागी, जहनी, आसाबी मसाइल हैं, तो उनके पाँव तर रहते हैं। तो जो जॉगिंग, वॉकिंग, पैदल चलने वाले, उन पे वो जूते आ गए हैं। जैसे एक जूते आए हैं जिनके नीचे नोके हैं, कहते जी शुगर वालों के लिए, फलां बीमारी वालों के लिए। इसलिए मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने अपनी जिंदगी में कभी कभी पैदल चलना भी सिखाया कि आप पैदल भी चले, यानी बगैर जूतों की भी चले, नंगे पाँव भी चले। पैदल तो सारी उम्र चले, नंगे पाँव भी चले। कहने लगे ऐसे जूते आ गए हैं, ऐसे जूते जिनके अंदर पानी भरा हुआ होता है और हल्का हल्का उसमें से मसाम होते हैं, जैसे हमारा पसीना नहीं निकलता हमारी जिल्द में से, ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं। इंसान का पाँव का वजन पड़ता है, वो छोटे छोटे सुराख, और फिर एक रास्ता होता है, उसमें से पानी निकलता जाता है कि अंदर कीचड़ ना हो, उसमें से बाहर निकलता जाता है, पानी भर दिया जाता है जूतों में। रूह की दुनिया है, रूहानियत की दुनिया है, वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की एक कायनात है, एक निजाम है पूरा, जो बड़े बड़े वलियों पे, गौसों पे खुला, कलंदरों नकीबों पे खुला, नजीबों अबरारों पे खुला, मुहद्दिसीन फ़ुक़हा पे खुला। इमाम गजाली की किताब उठा के देखें, बहुत कायनात खोली। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह कायनात खोली। शहनशाह विलायत हजरत इमाम जाफर सादिक सलामुल्लाह रहमुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, उन पे निजाम खुला, उन पे उलूम खुले जो हमारी अकल, शऊर, एहसास से हम सोच नहीं सकते। कितनी, जब से मुझे साल हो गए हैं, मैं या कहारों को बता रहा हूं कि पानी में पांव डाल के इसकी 11 तस्बीहां पढ़े, अवला कर 11 दफा दरूद शरीफ, या 8 तस्बीहां पढ़े, अवला कर 8 दफा दरूद शरीफ। कितनी दुनिया ने इससे फैज़ पाया, कितनी दुनिया ने इससे खैर पाई, कितनी दुनिया ने अपने गम, अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपनी परेशानियां, अपने मसाइल टलवाए। कितनी दुनिया ने, पूरी दुनिया में, पूरे आलम में अल्लाह ने ये निजाम चला दिया, फैला दिया, किसी दुनिया ने इसमें खैर पाई। डॉक्टर की दवा, डॉक्टर का फार्मूला, उसकी थ्योरी, उसका निजाम अपनी मर्जी से नहीं। अंग्रेज का फार्मूला है कि कोई भी अगर नंबर मिलाना है तो उसमें 0 पहले आएगा, मुल्क का मिलाना है तो उसका कोड पहले आएगा। वो तो हमारी मर्जी से नहीं चलेगा। रूहानियत का निजाम हम जिस तरह चाहें चलाएं, लिख ले नहीं चले। इसके लिए अपने आप को किसी फकीर के सामने तालिब इल्म बना के बिठाना पड़ेगा, तालिब इल्म बना के बिठाना पड़े, और तालिब इल्म बन के बैठना पड़े, तालिब इल्म बन के बैठना। मुझे एक और वाकया याद आया। हज़रत बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, असल नाम मसऊद था, और मावरा नहर, ये समरकंद, बुखारा, ताशकंद, ये ईरान तक एक खुरासान एक पट्टी है, अब कई मुल्कों में चली गई है। खुरासान एक पूरी पट्टी है जो कई मुल्कों में तकसीम हो गई है। तो ये असल वहां के थे। जब जादूगर आए आपके मुकाबले में, हर किस्म की ज्यादतियां की आपके साथ, बहुत ज्यादा जालिम है, लड़ने वाले, तलवारों पे हमला करने वाले, कातलाना हमला करने वाले, जहर देने वाले, आपके खिलाफ उस दौर का मीडिया इस्तेमाल करने वाले, आपके खिलाफ जुबान दराजी करने वाले, फिर जादूगर भी लाए। तो आपको आपके खादिम ने फरमाया, अर्ज किया, हजरत जादूगर हैं, पर मैं कोई परेशानी नहीं, मैंने इन सब के इल्म, इन सब के विर्द, इन सब की चीजें सल्ब कर ली, बस खत्म कर दी, हर चीज इनकी मैंने खत्म कर दी। इनकी जितनी भी चीजें हैं, ये कहते हैं हम ये करेंगे, ये होगा, ये सब खत्म, हमने सल्ब कर ली। मेरी एक दरखास्त है आपसे, अपनी जिंदगी में या कहारों को शामिल कर। और मैंने इसी हफ्ते वाले दिन मैंने एक लंबा सफर किया। इसी हफ्ते वाले दिन यहां से उकाड़ा गया, उकाड़ा से फिर मैं मामू कांजन गया, मामू कांजन से गोजरा गया, गोजरा से गुजरावाला आया, गुजरावाला के गांव में गया, किला मियां से लंबा सफर किया। रात के 1:45 बजे घर पहुंचा। एक दुर्वेश के यहाँ गया, गोजरा में एक मोहब्बत करने वाले थे मुझसे, वहां खड़े होते जो मैं रोया, इतना रोया आप सोच नहीं सकते। उनकी कब्र पे खड़ा हो, भाई की कब्र साथ थी जिनका वाकया मैंने आपको सुनाया था, फिर सुना देता हूँ। लिखा हुआ था डॉक्टर बरकत अली कब्र पे, उनकी कब्र पे नहीं लिखा हुआ था। गोजरा के मुखलिसीन मुझे उन्होंने सड़क से लिया, हम सीधा कब्रिस्तान गए, फिर उनके घर जाके गोजरा में मैंने खाना खाया। कहने लगे मैं बीमार हो गया। तो दुर्वेश जिनकी कब्र पे मैं गया,
हम बीमार हो गए। तो मेरे बैठे बैठे ना नाक से ऐसे खून गिरना शुरू हो जाता था। इलाज मुआवजा सुन्नत है, टेस्ट कराया, फलां से कुछ ना। वो अमल जो मैं बताता रहता हूँ कि किसी भी अपने प्यारे को ख्वाब में देखना हो तो ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का 4 रकात नमाज पढ़े, फातिहा के बाद अल्लाह को मुत्तकासुर 4 रकात इकट्ठी पढ़े, सलाम के बाद एक तस्बीह दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सोच। पर मैंने किया, अपने भाई से इलाज पूछा, भाई पहले फौत हो गया था, उनकी कब्र साफ। तो मैंने भाई से ख्वाब में पूछा, भाई ऐसे ऐसे मेरे नाक से खून बहना शुरू हो जाता है। तो भाई होम्योपैथिक डॉक्टर थे, तो कहने लगे फलां के पास जाएं, उसे कहें फलां ताकत की ये दवा एक पूरी आप खाएंगे ठीक हो जाएं। सुबह उठा तो होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा इतनी ताकत की होम्योपैथिक की एक पूरी बना दे। तो पूछा हाजी साहब किस लिए खाएंगे? कहा मेरे नाक से खून अचानक, कहा ये इस बीमारी के लिए नहीं है। कहा छोड़ मेरे भाई ने बताया। कह रहे भाई तो फौत हो गया। कह रहे ख्वाब में बताया। भाई तो फौत हो गया। कहने लगा ख्वाब में बताया। कहा मैंने वो पूरी खाई, उसके बाद फिर जिंदगी भर वो तकलीफ नहीं हुई। मैं हाजी साहब के पास खड़ा था और हाजी साहब से को हाजी साहब की मोहब्बत याद दिला रहा था और उन्हीं के साथ मैंने हाथ मिलाया था और मैंने अर्ज किया था, हाजी साहब आप जन्नत में जाएंगे, वादा करें मेरे बगैर। वादा की। ये वादे मैंने कई अल्लाह वालों से लिए हुए हैं, उनमें हाजी साहब 4 साल पहले फौत हुए। खड़ा मेरी मोहब्बतों के सारे बंधन टूट गए। बहुत रोया, वो हिचकियां ले लेके रोया, उनकी मोहब्बतों को याद किया रहा है मैंने। तो फलां जगह आपकी मोहब्बत, फलां जगह आपकी शफकत, फलां जगह आपकी। मामू कांजन में सूफी अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह तुरबत पे, उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहाँ एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं, पहले आंखें बंद करी, वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा, दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें क्या हमें यकसुई मिलती है। बस ये सोचें, याद रखिएगा, नक्श तावीज, नक्श तावीज, नक्श तावीज, ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सीरे पे खता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल हो। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। कमाल चीज है, और इसका बहुत ज्यादा नतीजा है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट है। अमलियात की जो वज़ाइफ, अमलियात, तावीज़ात की जो बुनियादें हैं ना, ये उनमें अहम बुनियाद है, उन बुनियादों में अहम बुनियाद है, और अहम तर बुनियाद है यकसुई कैसे हासिल। मैंने ना इस यकसुई का एक रात तरीका बताया, माचिस की डिबिया। एक बंदे को कहा 100 माचिसें तूने 100 माचिसें लेके रख ले, रोज एक माचिस चलानी है। पर माचिस चलाने के लिए पहले माचिस की दिया सलाई तीली को देख और डिबिया को देख, ये दोनों पे बारूद लगा हुआ है, बर्निंग मटेरियल है, बारूद लगा हुआ है। बस मैंने सिर्फ ऐसे रगड़ देनी है और दोनों ने आग लग जानी है दोनों में। लेकिन उसके लिए शर्त यह है, माचिस की डिबिया अगर उसमें वो गीली हो और उसमें नमी हो तो दोनों को आग नहीं लगेगी। तवज्जो जितनी ज्यादा होगी उतना वजीफा ताकतवर होगा और बहुत कुव्वत और उसमें ताकत होगी। एक तो ये माचिस की डिबियों का, 100 डिबियों का अगर अमल आप कर लें, उसका तरीका फिर अर्ज करूंगा। 100 डिबियां, ये 100 दिन का अमल है। एक डिबिया अपने पास रखें और हर तीली को तसव्वुर के साथ रगड़ें, ये लफ्ज शर्त है, तसव्वुर के साथ रगड़ें, तसव्वुर के साथ रगड़ें। और इस तसव्वुर के साथ कि मैं ये चीज रगड़ रहा हूं और ये चीज हो गई। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन
अन यकूल लहू, मेरा रब जिस चीज का इरादा कर लेता है बस वो कुन फयकून हो जाता है। मेरा अल्लाह लफ्ज कुन का भी मोहताज नहीं है। किसका मोहताज नहीं? लफ्ज। एक तो ये मेरा मशवरा है कि ये 100 माचिसों वाला अमल जो मैंने कई लोगों को करवाया, अमूमी नहीं करवाया, खसूसी कई लोगों को, 100 माचिसों वाला अमल अगर आप ये कर लें इह्तमाम से, वक्त निकाल के, जैसे बाकायदा मुसल्ले पे बैठते हैं, वुजू करते हैं, किबला रुख बैठते हैं, अंदाजा ऐसे है जैसे मिसाल दे रहा हूं, ऐसे नहीं कि अब वुजू हर चीज का इह्तमाम से करके और इसको जलाना है और तवज्जो लेनी है तीली से। और तसव्वुर यह है कि मेरी तवज्जो अगर होगी तो बस फिर एक रगड़ से दूसरी रगड़, माचिस की तीली मैं हूं और मेरी तवज्जो है, और बारूद कायनात में फैला हुआ लाहूती मलाकूती नूरानी रूहानी निजाम है, जो है और मुझे बस उसकी जरूरत है, जो है और मुझे उसकी जरूरत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि जिंदगी में ये तजर्बात जो मैं आपको मुंतकिल कर रहा हूं ये वो हैं जो बड़ों और बुजुर्गों के, औलिया और अहलुल्लाह के हैं, और इन तजर्बात में निचोड़ ही निचोड़ है, जो छोटे छोटे राज हैं, राज ही राज। तो ये माचिस का काम करेंगे। अच्छा, अब यकसुई का दूसरा अमल जो मैं अर्ज करूंगा, एक तो अमल माचिस वाला 100 माचिस, यकसुई का दूसरा अमल। यकसुई पाने के लिए सांस रोकने से यकसुई हासिल होती है। ये अमल सांस रोक के करें, आपने सुना होगा, सांस रोक के करें, आपने सुना होगा। अच्छा, अब आप ऐसा करें, अभी हम इसके साथ साथ मश्क भी करते हैं। मैं आपको ना इसमें जात मैं भी करता हूं, आप भी करें सांस रोक के, इसमें जात अल्लाह। अच्छा, तसव्वुर क्या करना है? अब तसव्वुर भी सुने। तसव्वुर यह करना है इसमें जात में सांस रोक कर कि मेरा दिल खाली है और मैं अल्लाह अल्लाह कह के उसको भर रहा हूं, और तसव्वुर ये हो कि मेरे दिल में अल्लाह का नूर भर रहा है। बस ये सांस रोक के आंखें बंद करके करें। जितना खाली पेट होंगे उतना सांस ज्यादा देर रुकेगा, ये तजर्बा भी याद रखिएगा। जितना भरा पेट होगा उस सांस थोड़ी देर, जिसे दमकशी कहते हैं, थोड़ी देर होगी। सांस रोक रोक के फिर यकसुई हासिल करने के लिए निशिस्त चाहिए। अगर आप चाहते हैं यकसुई हासिल करें 100%, मैं बाज़ों का सोचता हूं मेरे अल्लाह से बड़ा कोई हकीम है, अल्लाह ने यकसुई अत्तहियात की और नमाज के लिए खड़ा किया है, रुकू किया है, और जब बैठने का वक्त है अत्तहियात की शक्ल में बिठाया है, आलती पालती की शक्ल में नहीं बिठाया, और ऐसे बाजू लेके बैठे, टांगे ऐसे करके बाजू लेके बैठे, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो नींद आ जा। अल्लाह ने क्या किया? अत्तहियात। निशिस्त भी यकसुई का जरिया होती है, निशिस्त, ये नुक्ता याद रखिएगा, बैठने का अंदाज। अब आप अत्तहियात में बैठे, मेरे हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे अत्तहियात में बैठने की बाकायदा मशक करवाई। आप अत्तहियात में बैठे, नींद नहीं आएगी, 90%, 99% नींद नहीं आती अत्तहियात में बैठने से। आप कहते हैं बैठे भी अपनी मर्जी की सहूलत की, टेके लगाएं, बाजू घुटनों के बल बाजू का कड़ा लगाएं, हालांकि कड़ा तो रूहानी लगाना था, हमने बाजू का लगाया, और फिर लगाने के बाद कहते हैं नींद भी ना आए, यानी नींद की सारी शक्लें बना के कहते हैं नींद ना आए। पता नहीं कहां से सीखा मैंने आपने। आज यकसुई ये कवायद अमलियात हैं, ये अमलियात की बुनियादें हैं, ये वज़ाइफ की बुनियादें हैं, ये चिल्लों की बुनियादें हैं। अत्तहियात की शक्ल में बैठा है, कोई टेक नहीं है। अब आप अभी अत्तहियात की शक्ल में बैठे हैं, अब महसूस करें आपकी यकसुई एकदम में जिंदा हो गई है। आप खुद यही महसूस कर ले, बैठे अत्तहियात में बैठे, आपकी यकसुई अभी से, हम 10:07 पे बैठे हैं मेरी घड़ी के मुताबिक, सामने जो लगी है अत्तहियात की शक्ल में, आप यकसुई में आ जाएंगे। देखो गारों में क्यों भेजते थे, अभी मैं मकली में ठट्ठा में गया, वहां कुएं हैं। हिंदी में ना एक लफ्ज है हिंदू में, बावली। बावली उस कुएं में को कहते हैं जिसके नीचे उतर के पानी भरा जाता है। यह हमारे पूरे बरसगीर में आज भी बावलियां हैं, सिंध में हैं, जहां हिंदू हैं, बावली उसको कहते थे जहां पानी भरा जाता था। फिर क्या होता था, जो वीरान कुएं हो जाते थे उनके अंदर मेहराबें होती थी, कुओं के अंदर दाएं बाएं चारों तरफ। उन मेहराबों में यकसुई के लिए लोग जाते थे, अल्लाह अल्लाह करने, चिल्ला करने, या जंगलों में जाते थे, या गारों में जाते थे, या पहाड़ों में जाते थे। इसकी जिंदा मिसाल गारे हिरा है। मेरे हुजूर थोड़ा सा पानी लेते थे, थोड़ा सा खाना लेते थे और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे। आप सोचें, नबूवत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है और विलायत की इब्तदा यकसुई से शुरू हुई है। कल एक साहब ने अच्छी बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। कहा जो खाने का परहेज नहीं करता वह परहेजगार नहीं हो सकता। बड़ी गहरी बात।
शिकम फकीरा तगारे खुदा हमा चीज आया फना दर फना, हर चीज पे फनाइयां फेर दी और कहते फना भी हो जाऊं, फिर वजू भी रह जाए, वजू भी रह जाए, और फिर चिल्ले भी हो जाएं और यकसुइयां भी हो जाएं। मुमकिन तो नहीं है बज़ाहिर। ये मैं यकसुई बता रहा हूं आपको, यकसुइयां बता रहा हूं। अब ये सवाल क्या ख्याल है, फायदा हो रहा? अब सुने, मैंने यकसुई एक बताई है अत्तहियात की शक्ल में, मैंने यकसुई दूसरी बताई है सांस रोकने की शक्ल में, मैंने यकसुई तीसरी क्या बताई है, माचिस वाली। 3 यकसुइयों के अमल बताए हैं। अब चौथा अमल सुने यकसुई का। यकसुई का चौथा अमल है जिसमें मेरे कानों में आवाज कोई ना जाए, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने मुतासिर होने वाली चीज बनाया है। हमें हर चीज मुतासिर करती है, चलती चिमटी भी हमें मुतासिर करती है और हम देखना शुरू कर देते हैं। मैं आपको अमलियात और वज़ाइफ की बुनियादें बता रहा हूं। तस्बीह खाने से अमलियात वज़ाइफ बहुत सुने, तावीज़ात बहुत दिए और तजर्बा शुदा दिए जो जाके निशाने पे लगते हैं। अगली बात मैंने क्या बताई, चौथी यकसुई के लिए कान। हमारी कान मुतासिर होते हैं, कान जो सुनेंगे तो दिल में बात जाएगी, कान मुतासिर होते हैं। कानों को जैतून का तेल लगा के रुई में कान भर दे, या गीली रुई करके उसमें काली मिर्च पीस के कानों में डाल दे। जैतून का तेल रुई में भिगोएं, कान के अंदर भी चला जाएगा तो नुकसानदेह नहीं है। भिगोएं और कान के अंदर डाल दे, कान के अंदर डाल दे, यकसुई के लिए। और यकसुई का कितने यकसुई के मैंने तरीके बताए। और 5वां आंखें हैं, आंखें बंद हो, कान बंद हो, कान सिर्फ वही लफ्ज बोले, हर तरफ से कोई शोर शराबा ना हो, यकसुई हो। और यकसुई हासिल करने का छठा गुर और राज अंधेरा है। यह तहज्जुद का वक्त क्यों कहा गया? आप तजर्बा करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, होता है? आप महसूस करें, तहज्जुद के वक्त शोर नहीं होता, तहज्जुद के वक्त यकसुई होती है, तहज्जुद के वक्त आवाजें नहीं होती, तहज्जुद के वक्त इंसान नहीं होते, बंदे नहीं होते। यकसुइयों का सारा निजाम है, यकसुई का सारा निजाम है तहज्जुद के वक्त। कितने गुर हो गए राज? अब 7वां और आखिरी राज बताता हूं। अब आप कहते हैं कि हम ये सारी जिंदगी शहरों में अपने घरों में रहते हैं, कहां से गार लाएं, कहां से कुआं लाएं? उसका भी एक अमल बता देता हूं। उसका अमल थोड़ी सी तवज्जो तलब है, थोड़ी सी मुशक्कत है, लेकिन कामयाब अमल है। उस अमल का नाम है अंजमन दर खलवत, खलवत दर अंजमन, अंजमन दर खलवत। क्या दुनिया के हंगामों में, या अल्लाह दुनिया में ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे याद तेरी दिल नशी होती। एक तो ये है, एक है दुनिया के मशगलों में हम बाखुदा रहे। पहली चीज है कि तन्हाइयां तलाश की, वो तो मिलती नहीं, कहां से लाऊं? घर के अंदर मिल जाएगी, किसी गोशे में मिल जाएगी। एक ये है कि दुनिया, क्या लफ्ज का मैंने, हम बाखुदा रहे, सबके साथ रहते हुए सबसे जुदा रहे। ये मेहनत करें, इसकी कोशिश करें। उसके लिए ना रोजाना सिर्फ 10 मिनट का मुराकबा करें, और मुराकबा किसी वजीफे का कर लें। आप, मैं जो अमलियात की दुनिया के शायकीन हैं उनसे कह रहा हूं, मैंने देखें ये मंजिलें 1984 से शुरू की हैं, 84 से, 84 से ये मंजिलें शुरू की हैं। आज तक मैं तालिब इल्म हूं और इसी पे लगा हुआ हूं, और मेरा दिन रात मौजू यही है। यकसुई समझ आ गई? अब हम बैठ के ना यहाँ एक यकसुई की मशक करते हैं। तसव्वुर में आंखें बंद करते हैं, पहले आंखें बंद करी तो वो तो तसव्वुर में क्या आंख बंद हो जाती है, कान बंद नहीं होते, उसको तसव्वुर में बंद करना पड़ेगा, दिल बंद करना पड़ेगा तसव्वुर में, कि उसके अंदर कोई ख्याल, कोई गुमान, कोई एहसास ना जाए। अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे, अपनी सोचों पे पहरे लगाने होंगे। ये सब हम तसव्वुर में, तवज्जो में करें, और तवज्जो में करके सिर्फ चंद लम्हों के लिए हम सोचें, क्या हमें यकसुई मिलती है? बस ये सोचें। याद रखिएगा, नक्श तावीज, नक्श तावीज, नक्श तावीज, ये उस वक्त निशाने पे तीर होगा और तीर पे निशाना होगा, उस वक्त ये एक सीरे बेखता होगा जब हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। ये मेरा मोती याद रखिएगा, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी, हमारी तवज्जो उसमें शामिल होगी। ये कमाल चीज है और इसका बहुत ज्यादा नतीजा है, इसका बहुत ज्यादा रिजल्ट।